Hey word warriors, we are back and diving deeper into letter R, part 2. This round is loaded with words that restore, revive, rebuke and sometimes even revolt. These aren't soft words, they resonate with authority and reaction. If you love language that sounds refined but hits hard, you are in the right place. Let's raise the bar with letter R and make every word resonate. The first is relent. This means to become less strict or severe after resisting. रिलेंट का मतलब होता है कि आफ्टर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस आप जो हो थोड़े सॉफ्टन आउट हो जाओ या फिर आप थोड़े स्ट्रिक्ट कम हो जाओ, ठीक है. इट बेसिकली मीन्स टू ईज अप आफ्टर बीइंग फर्म और स्ट्रिक्ट. इमोशनली इट इज द कूलिंग ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है. जैसे कि एंगर आपका सेटल हो गया, प्राइड लूज हो गई, कंट्रोल रिलैक्स हो गया, ठीक है. एंड साइकोलॉजिकली इट ऑफन हैपन्स व्हेन कनेक्शन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन ईगो. तो यू रिलेंट, यू बिकम लेस स्ट्रिक्ट, ठीक है. एक पावर डायनामिक है इसमें कि द वन हु रिलेंट्स हैज द अपर हैंड, ठीक है. इट एम्प्लाइज कि उसकी जो अथॉरिटी है वो सॉफ्टन हो रही है, ठीक है, ठीक है. इट कैरीज टेंशन, जैसे कि समवन हेल्ड अ पोजीशन एंड देन चोज टू रिलीज इट. Example, he swore he wouldn't apologize first, but after hours of silence, he relented and sent the text. Now we have reminiscence, and this is the act of recalling past experiences fondly. ये word का basically मतलब ये होता है जब आप अपनी पुरानी memories को बहुत fondly recall करो, ठीक है, often with reflection or some kind of nostalgia, ठीक है. It carries warmth, but sometimes with a quiet ache कि हम लोग यार ये चीज़ ऐसे किया करते थे, अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है. It is your mind basically revisiting memories to preserve some kind of identity or process longing, ठीक है. It can comfort, but it can also trap someone in what no longer exists. Example, in quiet moments, her reminiscence of college days felt sweeter than her current routine. Now we have remiss, and this means careless about fulfilling duties or responsibilities. ये word का basically मतलब होता है negligent, ठीक है, failing to do something you were responsible for. ये एक गिल्ट कैरी करता है या फिर क्वाइट रिग्रेट कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या फिर जो आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी आप उन पे खड़े नहीं उतरे, ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स अवॉइडेंस, डिस्ट्रैक्शन और अंडर एस्टिमेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी एंड यू डिडंट मीट इट, ठीक है. एग्जाम्पल, ही फेल्ट रिमिस फॉर नॉट चेकिंग ऑन हिज फ्रेंड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट. Now we have remit, and this means to cancel a debt or send payment. Remit का मतलब होता है कि आप जो है कोई पेमेंट सेंड कर रहे हो, ट्रांसफर हो रही है, या फिर कोई डेट है या फिर कोई पेनल्टी है जो कि कैंसिल करी जा रही है, ठीक है. एक रिलीफ आपको मिलता है क्योंकि ऑफ कोर्स पनिशमेंट या फिर डेट जो है कम हो रहा है, एंड इट रिप्रेजेंट्स रिलीज फ्रॉम ऑब्लिगेशन, बर्डन और कॉन्सिक्वेंसेस. It carries institutional weight, for example, legal, financial, formal. Example, the court decided to remit part of the fine due to his circumstances. कि जो obligation है उसको थोड़ा कम कर देना. Now we have remnant, and this is a small remaining part of something larger. Remnant का मतलब होता है कोई ऐसी मतलब छोटी चीज out of the bigger thing जो कि पीछे रह गई हो, ठीक है. It is the remaining piece of something that once was whole. It carries residue, memory, loss या फिर survival, and remnants are what mind clings to after change or separation. Example, the old photograph was a remnant of a friendship that no longer existed. Now we have remonstrate, and this means to protest or argue strongly against something. Remonstrate का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहे हो या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हो. It basically carries frustration mixed with conviction, and it reflects a need to assert boundaries or defend your values, ठीक है. Power dynamic है towards authority or someone making a decision and you disagree with it, तो you remonstrate, ठीक है. It implies courage, which is speaking despite imbalance. Example, she remonstrated with the manager about the unfair workload. Now we have remunerate, and this means to pay someone for work or services. Remunerate का मतलब होता है जब आप किसी की सर्विसेज के लिए या फिर उनके काम के लिए उनको पे कर रहे हो, उनको कॉम्पनसेट कर रहे हो, ठीक है. आप उनके एफर्ट्स को जो है एक्नॉलेज कर रहे हो मॉनिटरी टर्म्स में, एंड फेयर रेम्यूनरेशन रीइंफोर्स करता है उनकी वर्थ, और जो अनफेयर पे होता है उससे जो है रिजेंटमेंट ब्रीड होती है. तो जिसने जो काम किया उसके लिए उसको फेयरली पे मिलना चाहिए, ठीक है. It's not just money, it's perceived fairness after all. Example, the company failed to remunerate its interns properly for their hours.
Now we have renegade, and this is someone who betrays or abandons a group or cause. रेनेगेट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी अथॉरिटी, नॉर्म्स, एलिजियंस के खिलाफ जाता है, उनको धोखा देता है, ठीक है, या फिर अबैंडन करता है. इट्स समटाइम्स लिबरेशन बट समटाइम्स इट्स अ बिट्रेयल. इट रिफ्लेक्ट्स कि आप जिस आइडियोलॉजी में पहले थे या फिर ऑटोनॉमी में थे उससे आप ब्रेक लेके अलग हो रहे हो इन परस्यूट ऑफ समथिंग एल्स. इट इज बेसिकली स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम. पहले आप जिसको सबमिट किया करते थे अब आप उसको सबमिट ना करके आप उसके पीछे हट रहे हो एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट इट. ठीक है. एग्जाम्पल, ही बिकेम अ रेनेगेड इन द इंडस्ट्री, रिफ्यूजिंग टू फॉलो द अनरिटन रूल्स. Now we have renunciation, and this is the formal rejection of a belief or claim. Renunciation का मतलब होता है कि आप किसी क्लेम को या फिर बिलीफ को या फिर कोई ऐसी चीज जो कि वैल्यू करी जाती है उसको आप फॉर्मली रिजेक्ट कर रहे हो. ठीक है. इट इन्वॉल्व सैक्रिफाइस, ऑफन पेनफुल होता है, समटाइम्स पर्पसफुल होता है. इट रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर, आइडेंटिटी और अटैचमेंट. एग्जाम्पल, हर रेनुnciation ऑफ फेम सरप्राइज्ड एवरीवन हु थॉट शी क्रेव्ड द स्पॉटलाइट. किसी चीज को सैक्रिफाइस कर देना तो उसको छोड़ देना. ठीक है. यू रिजेक्टेड कि नहीं चाहिए यार, बस यही है इसका. Now we have reparable, and this means capable of being repaired or fixed. Reparable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप ठीक कर सकते हो. ठीक है. कोई चीज जिसको रिस्टोर करने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. आउट ऑफ इट्स डैमेज. इट कैरीज होप कि जो हार्म है वो परमानेंट नहीं है. ठीक है. वो ठीक किया जा सकता है. एंड इट अलाउज रूम फॉर अकाउंटेबिलिटी विदाउट फाइनलिटी. ठीक है. Example, the misunderstanding felt serious, but thankfully it was reparable. It was a situation which could be restored, which could be saved. वो permanently damaged नहीं हुआ था. ठीक है. Now we have repine, and this means to complain or feel discontented. Repine का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके खुश नहीं हो. ठीक है. And you complain about it and you express longing for it. ठीक है. It suggests quiet dissatisfaction. It implies brooding unhappiness, जेंटल कंप्लेनिंग एंड विशिंग की चीजें जैसी हैं वो वैसी ना होती. ठीक है. एग्जाम्पल, ही कंटिन्यू टू रिपाइन अबाउट द मिस्ड अपॉर्चुनिटी. नाउ वी हैव रिपोज, एंड दिस मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पीसफुल काम. रिपोज का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा रेस्ट वाले फेज में होते हो. ठीक है. या फिर आप सो रहे हो या फिर बहुत काम एंड पीसफुल सा माइंडसेट है आपका. ठीक है. इट इम्प्लाइज स्टिलनेस, कंपोजर एंड पीसफुल क्वाइट. फिजिकल रेस्ट या फिर काम मैनर को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. एग्जाम्पल, शी ले इन पीसफुल रिपोज आफ्टर द लॉन्ग जर्नी. नाउ वी हैव रिप्रीहेंड, एंड दिस मीन्स टू क्रिटिसाइज और ब्लेम फॉर्मली. इस वर्ड का बेसिकली ये मतलब होता है जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो या फिर डांटते हो फॉर देयर एक्शन. ठीक है. इट्स अ जस्ट फॉर्मल डिसअप्रूवल. इट इम्प्लाइज करेक्शन, पॉइंटिंग आउट द रॉन्ग डूइंग एंड अथॉरिटी स्पीकिंग. कैजुअल क्रिटिसिज्म नहीं है. इट कैरीज जजमेंट. एग्जाम्पल, द मैनेजर reprehended the employee for breaking the rules. Now we have repress, and this means to hold back emotions or restrain actions. Repress का मतलब होता है जब आप अपने emotions को या फिर जो आपके मन में बात है उसको आप express नहीं करते. ठीक है. आप उसको hold back करते हो, restrain करते हो, suppress करते हो. ठीक है. Forcefully pushing down something. That's what repress is. It implies suppression, control under pressure, and denying any kind of expression. ठीक है. एग्जाम्पल, ही ट्राई टू रिप्रेस हिज लाफ्टर ड्यूरिंग द मीटिंग. मतलब आप नहीं चाहते कि आपके जो मन में है वो आपके फेस पे दिखे. ठीक है. तो यू काइंड ऑफ रिप्रेस योर इमोशंस. नाउ वी हैव रिप्राइव, एंड दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट और डिफिकल्टी. मतलब जब आपको किसी पनिशमेंट से या फिर किसी कॉन्सिक्वेंसेस से जो आपको फेस करने हैं उससे आपको एक टेम्पररी पॉज मिले. ठीक है. इट इम्प्लाइज मर्सी, डिले एंड अ ब्रीदिंग रूम. इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आउटकम है या फिर जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैंसिल हो गया. इट जस्ट पोस्टपोन्स इट कि अभी नहीं होएगा, बाद में होएगा. एग्जाम्पल, द डेडलाइन वॉज एक्सटेंडेड, गिविंग द टीम अ ब्रीफ रिप्राइव. नाउ वी हैव रेप्रिमांड, एंड दिस मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. रेप्रिमांड का मतलब होता है जब आप किसी चीज से एग्री नहीं करते, डिसअप्रूव करते हो या फिर किसी के रॉन्ग डूइंग को पॉइंट आउट करते हो. ठीक है. एंड यू स्कोल्ड देम. मतलब ये स्कोल्ड से थोड़ा वैसे स्ट्रॉन्गर वर्ड होता है, बट टू एक्सप्लेन इट टू यू तो आप उनको डांटते हो एंड यू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है. ठीक है. एंड इट इम्प्लाइज अथॉरिटी, वार्निंग एंड रिकॉर्डेड क्रिटिसिज्म. इट कैरीज कॉन्सिक्वेंसेस कि आपने ये चीज करी है तो आपको इस चीज का देखना पड़ेगा कि आपको क्या मिलता है. एग्जाम्पल, द ऑफिसर रिसीव्ड अ रेप्रिमांड फॉर मिसकंडक्ट. नाउ वी हैव रिप्राइजल, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन फॉर अ प्रीवियस एक्शन. रिप्राइजल का मतलब होता है जब
किसी चीज के लिए कोई एक्शन जो कि आपके साथ हुआ है उस पर आप रिटेलिएट करो, ठीक है. इट सजेस्ट रिवेंज कैरीड आउट इन रिस्पॉन्स टू अ हार्म. इट इम्प्लाइज पे बैक, काउंटर अटैक और कॉन्सिक्वेंसेज इम्पोज्ड इन रिटर्न. रिप्राइजल जो होता है रैंडम नहीं होता है, रिएक्शनरी होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो वो बंदा भी ना इन रिटर्न रिटेलिएट करते हुए उस पर अटैक करेगा. इट्स ओनली फेयर, ठीक है. एग्जाम्पल, द अटैक वॉज कैरीड आउट इन रिप्राइजल फॉर अर्लियर वायलेंस. Now we have reproach and this means to express disappointment or blame. रिप्रोच का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके डिसअप्रूवल दिखाओ, ठीक है, या फिर ब्लेम शो करो, ठीक है, एक्सप्रेस करो. इट कैरीज इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग. इट इम्प्लाइज ब्लेम, वोंडेड एक्सपेक्टेशन एंड मॉरल डिसअप्रूवल. ये वर्ड जो है पर्सनल है देन रेप्रिमांड. एग्जाम्पल, शी लुक्ड एट हिम विद क्वाइट रिप्रोच. Now we have reprobate and this is a person who behaves immorally without shame. एक ऐसा person जो कि morally unprincipled हो, ठीक है, and immorally अपने actions करता हो, उसको कोई शर्म लिहाज ना हो किसी भी चीज का. It suggests someone openly defiant of standards. It implies disregard for rules, shameless wrongdoing and social disapproval. That your actions are not liked by anyone, ठीक है, in society. It's a strong label. Example, he was considered a reprobate by the strict community. Now we have reprove and this means to correct or scold someone gently. Reprove का मतलब होता है जब आप किसी को उनकी wrong doing के लिए उनको करेक्ट करो, उनको समझाओ, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करो कि तुमने जो है ये चीज गलत करी है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है. इट सजेस्ट मेजर्ड करेक्शन. इट इम्प्लाइज गाइडेंस थ्रू क्रिटिसिज्म, मॉरल इंस्ट्रक्शन, calm but firm approval. एग्जाम्पल, द टीचर रिप्रूव द स्टूडेंट फॉर इंटरप्टिंग. ये नहीं कि उसको रूडली डांट दिया कि ये तूने क्या किया है कुछ भी, बट उसको समझाना कि इंटरप्टिंग समवन व्हाइल स्पीकिंग इज नॉट अ गुड थिंग टू डू एंड यू शुडंट डू दिस. So that's what reprove is. Now we have repugnant and this means extremely unpleasant or offensive, while repugnance is the feeling of disgust. Repugnant का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, अनप्लेजेंट है, ठीक है, इनर रिजेक्शन आता है आपको अंदर से, ठीक है. इट इम्प्लाइज डिस्गस्ट, moral or physical aversion, something that clashes with your values or senses. Dislike word से stronger है ये and it basically something that pushes you away. Example, the proposal was repugnant to the committee, something that they did not like and they were like कि तुम हमारे सामने ये propose कर भी कैसे रहे हो. Now we have repulse and this means to drive back or reject, while repulsive describes something disgusting. Repulse का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको देख के ना पीछे हट जाओ, आप सह ना पाओ उस चीज को, देख ना पाओ, एंड यू वुड बी लाइक कि भाई ये क्या है, ठीक है, तो यू वुड बी लाइक मूविंग बैक फ्रॉम इट, ठीक है. आप उसको फोर्सफुली रिजेक्ट कर रहे हो या फिर ड्राइव बैक कर रहे हो, एक्टिवली रिजेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज को. इट इम्प्लाइज पुशिंग अवे, रेजिस्टिंग एक्ट और रिफ्यूजिंग कॉन्टैक्ट. एग्जाम्पल, द आर्मी रिपल्स द इन्वेजन. Now we have Requiem and this is a musical service for the dead. Requiem जो होता है एक song, poem या फिर ceremony होती है which is conducted for the dead. It suggests solemn remembrance. It implies mourning, reflection, honoring जो जा चुके हैं, ठीक है. Example, the orchestra performed a requiem in memory of the victims. Now we have requisition and this means an official request for supplies or services. रिक्विजिशन जो होती है ना, आप किसी रिसोर्सेज के लिए या फिर किसी सर्विस के लिए, उसकी सप्लाई के लिए आप जो है एक फॉर्मल ऑर्डर या फिर एक फॉर्मल डिमांड भेज रहे हो, ठीक है. इट सजेस्ट अथॉरिटी क्लेमिंग रिसोर्सेज. इट इम्प्लाइज फॉर्मल डिमांड, लीगल और मिलिट्री अथॉरिटी, स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल. ये रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज बैक्ड बाय पावर. दे हैव द अथॉरिटी टू आस्क यू टू डू दैट और आस्क यू टू गिव देम दैट. Example, the army requisitioned supplies from nearby towns. Now we have requite and this means to repay or return something, often kindness or harm. Requite का मतलब होता है जब आप किसी को repay कर रहे हो या फिर return कर रहे हो जो उन्होंने आपके साथ किया है. It can be a good thing like kindness or it can be any kind of a wrongdoing, ठीक है. It suggests balancing a moral or emotional account. It implies returning a favor, repaying a debt or answering action with the action. कि तूने मेरे साथ ये किया था तो मैं भी तेरे साथ सेम चीज कर रहा हूँ, तू मेरे साथ अच्छा था तो मैं तेरे साथ अच्छा हूँ, तूने जो मेरे साथ ये गलत चीज करी तो मैं भी तेरे साथ ये चीज कर सकता हूँ, तू मेरे को कुछ नहीं बोल सकता. इट ऑफन कैरी सिमेट्री कि जो आपने दिया वही आपने मेरे से लिया, ठीक है. Example, she hoped to requite his generosity one day.
Now we have resigned and this means to cancel or revoke a decision or agreement. Resign का मतलब होता है जब आप किसी decision को या फिर agreement को cancel करो या फिर उसको withdraw करो officially and formally, ठीक है? It suggests formally undoing a decision. It implies reversal, nullifying authority and erasing something that was once valid. Casual cancellation नहीं है कि बस आए और बोल दिए. Procedure होता है पूरा and deliberate cancellation of something. Example, the company decided to resign the job offer. Now we have resent and this means to feel bitterness about something unfair and resentment is that feeling. Resent का basically मतलब ये होता है कि जब आपके मन में किसी को लेके एंगर हो या फिर बिटरनेस हो, ठीक है, ऑल्दो आप अब उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, यू आर कंटिन्यूइंग योर रिलेशन विद देम हाउएवर इट इज, ठीक है, बट स्टिल आपके मन में ना वो बात होती है कि यार तूने मेरे साथ ना ऐसा किया था, ठीक है. इट सजेस्ट क्वाइट लिंगरिंग डिस्प्लेजर. इट एम्प्लाइज इंटरनल एंगर, सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड अनरिजॉल्व्ड इरिटेशन अबाउट सम टॉपिक. एक्सप्लोजिव नहीं है कि आप जाके सीधा उनको कन्फ्रंट कर रहे हो या फिर उनको बोल रहे हो कि भाई तूने मेरे साथ ये किया था और मेरे को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी. ये जो रिजेंटमेंट वाली फीलिंग होती है ये सिमर करती है, ये धीरे धीरे आपके अंदर रहती है, ठीक है, बिकॉज यू फील कि जो उसने आपके साथ किया वो सही नहीं था, ठीक है, एंड ऑल्दो आपने उसको उस मोमेंट में माफ कर दिया बट आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना इनजस्टिस हुआ है, ठीक है. एग्जाम्पल, ही बिगैन टू रिजेंट द एक्स्ट्रा वर्कलोड. नाउ वी हैव रिस्पाइट एंड दिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम डिफिकल्टी. मतलब किसी डिफिकल्टी से या फिर कॉन्सिक्वेंसेस से, प्रॉब्लम से, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जब आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए रिलीफ मिल रहा है या फिर रेस्ट मिल रहा है, ठीक है. इट एम्प्लाइज पॉज, रिकवरी टाइम, इंटरप्शन ऑफ डिफिकल्टी. इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल खत्म हो गया, इसका बस ये मतलब है कि वो अभी के लिए रुका हुआ है. एग्जाम्पल, द रेन ऑफर्ड अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द हीट. नाउ वी हैव resplendent and this means shining brilliantly or impressively beautiful. कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करती है, रेडियंस है, ठीक है. It suggests magnificent brightness. It implies glowing beauty, striking appearance, impressive brilliance. Beautiful से stronger adjective use किया जा सकता है ये, ठीक है. Example, the palace looked resplendent in the sunlight. Now we have restive and this describes someone who is restless or unable to remain still. एक ऐसा person जो कि रेस्टलेस है, ठीक है, टिक के नहीं रह रहा, मूव करे जा रहा है एंड दे हैव दिस इनर फीलिंग कि हाँ भाई हम टिक के नहीं रह सकते, एक जगह पे स्टक नहीं रह सकते. इट इम्प्लाइज एजिटेशन, डिससैटिस्फैक्शन एंड डिजायर फॉर चेंज और मूवमेंट. ये एक पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकता है या फिर एक ग्रुप को भी डिस्क्राइब कर सकता है हु आर रेडी टू पुश बैक. एग्जाम्पल, द क्राउड ग्रू रेस्टिव एज द डिले कंटिन्यूड. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words and root words. It makes learning more organized, easier and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.